Yes, we should. Okay. Good evening, everyone. Welcome to SarkariSchool.in. This is an initiative to build a platform for those working in the field of school education, uplifting the future of younger generations through their hard work. Those who are not related to government or any organization, but are helping the neglected strata of the Indian society. SarkariSchool.in is an initiative of we citizens. I am Rishvi Gupta, students of BTech in Computer Science and Engineering at Krishna Engineering College. Could we have Nishi here? Hello, ma'am. My name is Nishi Nisha Upadhyay and I am pursuing journalism and mass comm from Banasthali Vidyapeeth. Good to meet you. Yeah. Nice to Hi. meet you. First, I would like to call Taran. He would be introducing our project Sahyog. Hello, Sorry. good evening, ma'am. Okay, so I'm Taran. Good evening, ma'am. We welcome you on the stage. It's a great honor. So basically, in Project Sayog, thank you, ma'am. So in Project Sayog, what we do is we work towards creating quality, educational content as well as engaging school going and adults who are undergraduates, children, through various activities and workshops that we conduct. So our aim is to fulfill the gaps of education by producing quality content so that no child is deprived of education. Every child deserves that education and every child deserves gets that education. So this is our broad aim that we work towards. So basically what our focus all in these activities are not all on academic skills, because children they go to school, online classes are going on, they are doing mathematics and science. We focus more on skills, life skills. We focus more on 21st century skills that children are going, and they are very essential in our day-to-day life, like communication, teamwork, negotiation. So we focus on all these skills and we try to help children develop confidence, enhance their creativity. We try to do so, and through this and with this thought and with this objective in mind, so we thought of introducing and coming up with theater workshops with children so that we are able to enhance their confidence and everything. Ramandeep will more introduce ourselves with the thought of theater, coming up with theater workshops and their objective. Over to you, Raman. Thank you, ma'am. Thank Hello, you ma'am. Taran, very much. Theater can be anything and everything from reciting poems to dramas to reflecting on one watch series. In simpler words, theater is a mode of expression. It helps us to experience different situations, emotions, and roles. It enhances our creativity, life skills, language skills, and perception of the world. It is significant because it teaches us how to express ourselves more creatively and effectively. It helps us to develop an ability to communicate to others what we feel, and of course, improving our relationship with others. Theater is a lot more than what we can express in words. So, we here at Sarkari School recognize the need of theater in a child's world and for inculcating 21st century skills like communication, public speaking, and creativity in children through organizing a 7-day theater workshop. Another purpose behind this is because all day the children are running after the curriculum, so they need refreshment also. For that, our organization has organized this theater workshop to ensure non-curricular activities present in their everyday life. So we hope that this session is interactive for all and also bears a fruitful discussion for us. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much, Ramandeep Kaur. So now we have Shalini Gupta ma'am here with us. शालिनी गुप्ता मैम भोपाल की रहने वाली हैं। वो थिएटर, टीवी एंड फिल्म आर्टिस्ट भी है। मैम ने पैडमैन जैसी फिल्म में भी काम कर रखा है। वेलकम मैम टू आवर प्लेटफॉर्म। मैम आप Thank you so much. मैम आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। मेरे बारे में तो आपने बता ही दिया। आप मुझसे पूछें कि मैं आपको क्या बता सकती हूँ। आप पूछिए। मैम जैसे कि कलाकार जो है बनने की यात्रा आपकी कहाँ से शुरू हुई मैम, हम आपकी पूरी जर्नी जानना चाहेंगे। देखिए, एक फ्रेज है
वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। Yes, ma'am. बचपन में किसी के बारे में कोई बात करते हुए या अपने स्कूल में किसी को कुछ बताते हुए हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। शायद ये आज के बच्चों में नहीं है, पहले हमारे जमाने में हुआ करती थी, जब थिएटर ही केवल हुआ करते थे। आई मीन सिनेमा थिएटर्स, सिनेमा हॉल्स। जब हम वहां पर पिक्चर देखने जाते थे तो अपनी क्लास में आकर हम उसकी स्टोरी सुनाते थे, वर्ड टू वर्ड, स्टेप टू स्टेप, सीन बाय सीन। वहीं से ये यात्रा शुरू हो गई। और मैं अपनी क्लास में इतनी फेमस थी, एक पिक्चर देखकर आती थी और कम से कम 15 से 20 बच्चे इस इंतजार में होते थे कि शालिनी बिल्कुल एक्टिंग करके हमको पूरी स्टोरी सुना देगी। तो वहीं से मेरी ये यात्रा शुरू हुई। प्लस स्कूल के दौरान जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें रेगुलर पार्टिसिपेशन करना, चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो, स्टेज पर आकर कुछ बोलना हो, कहीं किसी एक्टिविटी को लीड करना हो, तो वो वहां से शुरू हुई। और उसके बाद में ये हुआ कि आफ्टर माय मैरिज मैं नहीं ये कंटिन्यू कर पाई, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगे तब मैं बच्चों को किसी एक्टिविटीज क्लासेस में लेकर जाती थी। तो मेरा घर उस एक्टिविटी क्लास से दूर होता था, तो मैं वहीं बैठी रहती थी और वहां पर दूसरे बच्चों को ऑब्जर्व करती थी, अपने बच्चों को ऑब्जर्व करती थी कि ये कैसे कर रहे हैं, किस तरह डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और वो किसी तरह याद कर पा रहे हैं या नहीं, उनके एक्सप्रेशंस ठीक आ रहे हैं या नहीं। मैं 1-2 दिन तो केवल म्यूट होकर देखती रही, लेकिन वो अंदर का कलाकार जागता रहता था हमेशा। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, और जो वहां पर जो सुपरविजन हो रहा है वो किसी तरह से सब बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। मैं एक दिन अपने आप ही उठी और 2-4 बच्चों को बोला, आओ मैं तुम्हें डायलॉग याद करवाती हूँ। तो उन बच्चों को डायलॉग याद करवाने के साथ साथ उनको भाव बता रही थी, उनको सही प्रोनाउंसिएशंस बता रही थी, जो उच्चारण होते हैं। एक्चुअली मैं जहाँ यहाँ रहती हूँ, यहाँ पर हिंदी का ही उच्चारण बहुत डगमगाया हुआ है। जी, तो वो चीज मुझे खटकता रहता था कि ये बच्चे हैं, बिल्कुल अभी कच्ची मिट्टी है, अगर अभी से ही ये सही उच्चारण नहीं करेंगे तो बड़े होकर भी ये ठीक से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर मैं जब ये करने लगी तो जो उसके डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे तीसरे दिन, 2 दिन तो मैं करती रही और उन्होंने भी ऑब्जर्व किया, तीसरे दिन मुझसे कहते हैं, दीदी मैंने आपके लिए एक रोल लिखा है, आप ये इसमें ऐड कर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप इसमें ये वाला रोल करिए। मैं डर गई, मैंने कहा नहीं शायद आपको बुरा लगा है कि मैं आपके बच्चों को सिखा रही हूँ, मैं बाहर बैठ जाया करूंगी। नहीं थैंक यू, आई एम सो सॉरी, मैं बाहर बैठ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने 2 दिन आपको ये नोटिस किया और बच्चों के अंदर मैंने वो इम्प्रूवमेंट देखा है, मैं तभी आपको दे रहा हूँ, और इस स्क्रिप्ट को मैंने थोड़ा सा एनहेंस कर दिया है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, तो उसमें आपके लिए। तो उसमें मेरा रोल उन्होंने जो दिया वो था 90 साल की बुढ़िया का। एक्चुअली वो एक स्किट किया जा रहा था जो कि ओल्ड एज होम में किया जाना था। तो जी, उसके लिए छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे इन सेंस 12-13 साल के बच्चों से लेकर 20-22 साल तक के बच्चे थे बस। तो जी, उसमें मैं उन सबकी आंटी, अपने 2 बच्चों की मम्मी, और उसमें मैं ऐड हो गई। और ये बात है करीब आज से 16-17 साल पहले, 2006 की बात है शायद। हाँ, जी, तब मैंने नई नई गाड़ी चलाना सीखा था, मैं इसीलिए घर वापस नहीं आती थी कि मुझे डर लगता था कि एक बार गई हूँ वापस जाऊंगी और फिर वापस जाऊंगी और फिर बच्चों को लेकर आऊंगी। तो मैं एक बार जाती थी, वहीं 2 घंटे बैठती थी बच्चों के साथ और फिर एक साथ ही लेकर आती थी बच्चों को। तो इसलिए याद है मुझे कि 2006 की बात है ये। तब उन्होंने मुझे ये 90 साल की बूढ़ी एक महिला का रोल दिया, और वो भी वहीं पर जो एक जिस ओल्ड एज होम में हम लोग ये रिहर्सल कर रहे थे उसी में हमको ये प्ले करना भी था। और वहीं की एक इतनी ही बूढ़ी एक महिला थी, उन्हीं के जीवन पर आधारित उन्होंने छोटा सा एक मोनोलॉग था
15-20 लाइंस का, वो उन्होंने मुझे दिया था एनेक्ट करने के लिए। और मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि मैं जो बोलने वाली हूँ वो यहीं की एक महिला की अपनी कहानी है। ये जब वो नाटक हो गया वहां पर, तो उसके बाद में मुझे ये बताया गया कि जो आपने बात कही थी वो इनकी कहानी थी। उनसे मिलकर बहुत दुखी हुई थी मैं, क्योंकि वो चीज बहुत इमोशनल थी। क्योंकि स्टोरी लाइन वही थी कि कैसे अपने वृद्ध माँ बाप को किस तरह बच्चे त्याग देते हैं, इस तरह वाली। तो जब मैंने वो कर लिया था तो वहीं से शुरू हुई, तो लोगों को बड़ा पसंद आया। मुझे भी लगा कि हाँ मैं तो कर सकती हूँ, भले ही इतना गैप हो गया है। और वहां पर कुछ जो यहाँ का मेन स्ट्रीम थिएटर है भोपाल का, वहां के भी कुछ दर्शक ऑडियंस में बैठे हुए थे। जो वहां के आर्टिस्ट हैं, जो मेन स्ट्रीम थिएटर के आर्टिस्ट हैं, वो भी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे। उनमें से किसी ने मुझे देखा और उन्होंने करीब 3 या 4 दिन बाद ही मुझे कॉल कर लिया कि हमने आपको वहां देखा था, आपने ये वाला रोल किया था, अभी एक और हम नाटक कर रहे हैं, उसमें आपको मम्मी का एक रोल प्ले करना है 15-16 साल की बेटी का। मैं इस तरह से मेन स्ट्रीम थिएटर में आ गई। और उस प्ले के करीब 3 शो हुए, रिपीट शो। और उसके बाद में मैंने फिर कई शोज किए, जो करीब मैंने 15 या 16 नाटकों में मैं काम कर चुकी हूँ। उनमें से एक नाटक का मैंने निर्देशन भी किया है। जी, ओल्ड एज होम वाला? नहीं, अलग अलग तरह के। जी, ओल्ड एज होम का तो एक हो गया, उसको देखकर फिर मुझे दूसरे काफी सारे मिले। नाटकों के ऑफर मिलते गए। और जब हम रिहर्सल के लिए जाते हैं या एक नाटक जब हम स्टेज शो करते हैं, तो उसकी दर्शक दीर्घा में बहुत सारे तो ऑडियंस आम जनता होती है, जिनका की एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए या नाटक देखने के लिए आते हैं। लेकिन उसमें से बहुत सारी दर्शक ऐसे होते हैं जो थिएटर से वास्ता रखते हैं, जो थिएटर के डायरेक्टर्स भी होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं, वो लोग भी देखने आते हैं। क्या होता है, थिएटर लाइव शो चल रहा है स्टेज पर, वही बहुत बड़ा चैलेंज है। वहां पर कोई रिहर्सल नहीं है, कोई कट नहीं है फिल्मों की तरह। वहां पर हमने जो इतने दिन अपनी महीना 2 महीना जो रिहर्सल की है, वो हमको सबके सामने तभी एक फ्लो में हमको शो करना है। चाहे हमारे दिल की धड़कनें तेज चल रही हो, या हमारे उस स्टेज के पीछे हमारे घर में कुछ भी हो रहा हो, या जो भी है। क्योंकि हम वहां पर अब आ गए, तो मतलब वहां पर तो पूरा हमको उस पात्र में जीना है जिसकी हमने रिहर्सल की है। तो जी, इस तरह से मैंने कई 15-16 अलग अलग प्लेज में मैं आर्टिस्ट रही। जी। मैम, कहते हैं रंगमंच किरदार को निखारता है कीमती पत्थर की तरह। हम उसी तरह किरदार को निखारने में थिएटर यानी रंगमंच का क्या महत्व है? देखिए, आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, जी, गीली मिट्टी से खेलते हैं। अभी पता नहीं आप लोग इस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं या नहीं। जी, हमारे जमाने में हमारे घर के गार्डन्स में मिट्टी हुआ करती थी। हम उस मिट्टी को, गीली होती थी, किसी भी तरह कोई बर्तन का शेप, कोई कुछ भी शेप बनाते थे। कभी क्रैक हो जाता था, कभी टूट जाता था, कभी बन पाता था, नहीं बन पाता था, सूखता था, नहीं सूखता था। तो वो हमारा ये दर्शाता है कि हम इनएक्सपीरियंस्ड थे। वही जी, चीज अगर कुम्हार उन मिट्टी को लेकर जब अपना बर्तन बनाता है, तो वो बहुत सारी प्रोसेस से गुजरता है और एक बहुत सुंदर सा आपके सामने पॉट आपके सामने आ जाता है। यानी कि कुम्हार जो है वो एक परिपक्व आदमी है, वो एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, जो कि उस कच्ची मिट्टी को इस तरह से ढालता है जो उसने अपने आप में सोचा होता है कि हाँ, उसे क्या गढ़ना है। वही कच्ची मिट्टी हम होते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। हम जब रंगमंच में जाते हैं, हम जब अपनी इच्छा किसी के सामने जाहिर करते हैं, यानी कि किसी थिएटर से रिलेटेड किसी भी आर्टिस्ट से, आर्टिस्ट का मतलब सिर्फ एक्टिंग करने वाला ही आर्टिस्ट नहीं होता है। आर्टिस्ट का मतलब होता है राइटर भी, उसका लिरिसिस्ट भी, उसका म्यूजिशियन भी,
डायरेक्टर भी और जो पर्दे के पीछे बैक स्टेज जो लोग काम करते हैं वो सभी आर्टिस्ट होते हैं, सभी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर मैंने किसी के सामने ये इच्छा जाहिर कर दी कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो ऐसा नहीं कि हाँ जी आ जाइए आप तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमको जब तक कि रिहर्सल नहीं करनी होती, और इस रिहर्सल तो बात की बात है, हमें पहले ये समझना होता है कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर हमें अभिनय करना है, अभिनय के लिए हमको पूरी दुनिया को बहुत सुंदर तरीके से ऑब्जर्व करना होगा, बहुत गहराई से ऑब्जर्व करना होता है कि कौन किस तरह बात करता है, किसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, किसी की बोलने की शैली क्या है। और जब हम कहानियां पढ़ते हैं तो उसमें भी हम जब एक बहुत तरीके से लिखी हुई जब कहानी होती है, हमारे आंखों के आगे वो चित्रण आ जाना चाहिए कहानी पढ़ने के साथ साथ। चाहे आप उपन्यास पढ़ रहे हो या आप कोई छोटी सी भी कहानी पढ़ रहे हो, उसका चित्रण अगर आपके सामने आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर वो आर्टिस्ट के गुण हैं। लेकिन अब उसको ढालने के लिए, आपको और परिपक्व बनाने के लिए, या आपको सुंदर रूप सुंदर आकार देने के लिए आपको अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों की जरूरत पड़ती है, और आपको कोई एक ग्रुप ज्वाइन करना होता है ताकि वहां पर आप सीख सकें। और उसमें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, हमको बोलने की शैली, हमको लिखने की शैली, हम क्या कॉस्ट्यूम पहनेंगे तो उसके ऊपर भी सारा डिस्कशन होना, ये सभी चीज रंगमंच में लाइट, लिखना, म्यूजिक, प्रॉपर्टी को आपको सेट कैसे लगाना है, प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाना, सेट क्रिएट करना, ये सब मिलकर करते हैं। इसके लिए अलग अलग व्यक्ति नहीं होते, और हम किसी को हायर नहीं करते, नहीं तो व्यक्ति आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता जब तक कि आप उस कहानी के अंदर घुस न जाएं, आप उस कहानी को या उस पात्र को अपने अंदर ना घुसा लें, तब तक आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। मैं अपने दर्शकों को पहले बताना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको अगर कोई भी प्रश्न है मैम से, प्लीज चैट बॉक्स पे डाल दें। और अभी मैं निशी को बुलाना चाहती हूँ। मैम, निशी के पास आपके लिए कुछ प्रश्न है। हाँ जी जी मैम आपके एक्टिंग के सफर की शुरुआत काफी अनोखी रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप एक्टिंग में किसे अपना गुरु मानती हैं? ऐसे कौन से कलाकार हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं? देखिए, ऐसे तो अगर हम ये कहें कि एस्टेब्लिश्ड कोई जाने पहचाने लोगों के नाम ले लें तो नहीं, वो चीज नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है, वो अपने आप तो नहीं है। जो हमारे एक्टिंग के जो प्रेरणा स्रोत होते हैं वो हमारे आसपास के ही लोग होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आप आर्टिस्ट तभी बनते हो जब आप किसी को इमिटेट कर रहे हो। अगर एक सब्जी वाला भी आपको अगर इंस्पायर कर देता है, कभी ना कभी आपने भी किया होगा, कोई सब्जी वाला किसी तरह आवाज लगाता है, आप अपने घर में उसकी आवाज के पीछे अपनी आवाज मिलाकर आवाज लगाते हो। अगर आपने ऐसा किया है तो आप आर्टिस्ट हैं, तो उस सब्जी वाले ने आपको प्रेरणा दी है। अगर आप स्टेशन पे हैं, रेलवे स्टेशन पे, चाय वाला जिस शैली से चाय बेचता है, पकौड़े वाला जिस शैली से पकौड़े बेचता है, खिलौने वाला जिस शैली से आपको खिलौने बेचता है, वो सब आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। आप अगर आपकी किसी कहानी में वो चाय वाला है या वो खिलौने बेचने वाला है या वो कोई पुस्तक बेचने वाला है, तो आपको उसकी शैली पकड़नी होगी। बड़ी बड़ी फिल्मों के बड़े बड़े उदाहरण हैं कि जो अपने आप कहीं से भी अपनी दिमाग की उपज नहीं होते थे। वो अगर आपको याद होगा, एक गीत है मिडिल 70s का फिल्म की है वो, अमर अकबर एंथनी। उसमें जो गोंजाल्विस, जो अमिताभ बच्चन जी ने जो रोल प्ले किया था, वो डायरेक्टर के घर के बाजू में एक गोंजाल्विस रहते थे। उनके साथ में वो 3 या 4 साल 5 साल जितने साल रहे, उन्होंने उसको इतना ऑब्जर्व किया उस गोंजाल्विस को कि उन्होंने वो कैरेक्टर अपने इतनी बड़ी कहानी के इतने बड़े कलाकार को दी कि आपको उनको इमिटेट करना है।
तो अब आप बताएं, एक इतने बड़े जो उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने तो अपने पड़ोसी से प्रेरणा ली ना, क्योंकि वो जी। उसी तरह के एक अनोखे व्यक्ति थे। वो, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, उनके डायलॉग डिलीवरी, जो रोजमर्रा की जो बातें करने की शैली थी, वो उनकी बिल्कुल अलग थी। तो उन्होंने वो चीज अडॉप्ट की और एक अपने एस्टेब्लिश्ड कलाकार से उस एक अनजान व्यक्ति की शैली को अपनाने के लिए कहा। तो बस मेरे लिए भी, मैं किसी बड़े कलाकार का नाम लेकर किसी और व्यक्ति के प्रति कोई अनादर नहीं करना चाहती। मेरे लिए वो सभी प्रेरणा स्रोत हैं जो कि मुझे वाकई में इंस्पायर करते हैं, और बिल्कुल हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी के हमारे आसपास के लोग। जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें। तो मैम, आपको थिएटर और सिल्वर स्क्रीन दोनों का अनुभव है, तो हम जानना चाहेंगे कि थिएटर में एक्टिंग करना और मूवीज में एक्टिंग करना, दोनों में आपको क्या फर्क नजर आया, और आपको किस में ज्यादा मजा आया, और आप किसको ज्यादा पसंद करती हैं? नहीं, ये तो फिर आपने ये पूछ लिया कि मुझे मेरा बड़ा बेटा अच्छा लगता है या छोटा बच्चा, है ना? तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। एक्चुअली देखिए, थिएटर में हमें जो करना होता है वो बिल्कुल लाइव होता है। उसके लिए हमें प्रैक्टिस की जाती है कि अपने स्टेप्स, अपने डायलॉग्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, अपनी जो ब्लॉकिंग होती है, कि हम अगर बात कर रहे हैं, हम कोई डायलॉग दे रहे हैं और मेरे साथ अगर 3 और कलाकार हैं, तो उन तीनों की भी ये ड्यूटी बनती है कि कहीं वो मुझे ओवरशैडो ना कर दें, या मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उनको ब्लॉक ना कर दूं कहीं, हमारी प्लेसमेंट। तो ये हमको ये चीज एट द बैक ऑफ माइंड रखते हुए हमें लाइव करते रहना है, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी स्टॉप। जी तो मैम। आप ये सोचिए, और फिल्म के लिए या जो छोटे पर्दे के लिए जो शूटिंग होती है, उसमें तो तमाम हजारों बार कट 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 हो जाता है, और हमें नहीं मालूम होता कि हमने कौन सा शॉट जो है वो सही दिया। तो जो डायरेक्टर होते हैं, हो सकता है कि वो पिछले शॉट मेरा अच्छा था, आगे के 3 बार मैंने अच्छा नहीं किया, तो वो पिछले वाले को लेकर और दूसरे एक उसके साथ एडिट करके आपके सामने फिर पेश कर दिया जाता है। तो दोनों की जो शैली है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन मजा दोनों में आता है, क्योंकि दोनों में आपको एक्टिंग करने का मौका मिलता है। जी मैम। मैम, जी मैम। इंडिया में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो थिएटर या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसको उतना हाँ। महत्व नहीं देते, पार्टिसिपेट करने से झिझकते हैं, पेरेंट्स भी इतना एनकरेज नहीं करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो इन सब चीजों करने से, एक्सप्लोर करने से झिझकते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे उनको? अ, क्या पहली लाइन फिर से बोलिए आप, क्या कहा आपने? सॉरी। मैंने कहा कि इंडिया में अक्सर देखा जाता है कि स्टडीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये जो हाँ थिएटर है, करिकुलर हाँ एक्टिविटीज, हाँ। इसमें बच्चे पार्ट लेने से अच्छा। झिझकते हैं, पेरेंट्स भी हाँ रोकते टोकते हैं। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या हाँ। कहना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स को कहना तो कोई सही बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसके रीजंस ये होते हैं कि जब जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई या जॉब ओरिएंटेड कोई भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, उसको हमारे इंडिया में प्रायोरिटी दी जाती है। कि भाई, अगर फैमिली प्रेशर है, फैमिली की बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसी भी व्यक्ति पर, तो ये कहा जाता है भी पढ़ लिख लो, एक अच्छी नौकरी कर लो या बिजनेस कर लो, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और एक कंटिन्यू एक आमदनी बनती जाएगी, है ना? ये चीज बोली जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है, हमारा जो एक हमारी जो सिस्टम है हमारी सोसाइटी का, वो ऐसा ही है। कलाकार आपने देखा होगा बिल्कुल रेयर, किसी एक शहर में बहुत सारे कलाकार नहीं मिलेंगे आपको, चुनिंदा मिलेंगे। वो उनका जुनून लाता है उनकी कलाकारी की तरफ। अगर उनके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है, उनको सिर्फ वही करना है, उनको और कुछ करना ही नहीं है, तभी वो लोग जाते हैं इस एक्टिंग फील्ड में या थिएटर फील्ड में या आर्टिस्ट बनने के लिए। अब मैंने आपको आर्टिस्ट की भी एक डेफिनेशन बताई है। आर्टिस्ट केवल स्टेज पर एक्टिंग करने वाले को आर्टिस्ट नहीं कहते।
इसीलिए पेरेंट्स जो है थोड़ा हिचकते हैं अपने बच्चों को इसमें जाने, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। मैं सही बात बता रही हूँ। या तो आपको ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अगर बच्चों को करना है तो पढ़ाई के साथ साथ छोटी उम्र से ही अपने आप को इसमें एक प्रिपेयर करने वाली प्रोसेस में आ जाना चाहिए। कहीं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप किसी के साथ जुड़ जाइए। तो आप, अगर आपको नहीं भी करने का मौका मिल रहा है, स्टेज पर आने का मौका नहीं मिल रहा है, तो भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप वहां 1 महीना केवल बैठ के भी आए हैं, तब भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो आपसी बातचीत होती है रिहर्सल के दौरान, जो तैयारियां की जाती हैं कि इसको हम ये कॉस्ट्यूम देंगे, यहाँ पर लाइट यहाँ से होगी, इसमें इस व्यक्ति को हम इस तरह की कुर्सी पर बिठाएंगे, इस व्यक्ति को हम अंधेरे में से निकालेंगे, तब जाके इसके ऊपर थोड़ा सा उजाला आएगा। तो आपने सीखा ना कुछ कि स्टोरी के हिसाब से आपकी अपीयरेंस स्टेज पर कैसे हो रही है। अगर आप ये भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, तब भी आप सीख रहे हैं। एक्टिंग की फील्ड में आने के लिए या थिएटर की फील्ड में आने के लिए आपके कदम उस टाइम से चल चुके होते हैं। फिर वो आपका डेडिकेशन और डिवोशन है कि आपको अगर वो पसंद आ रहा है, आपका मन लग रहा है, आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू करिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई तो देखिए मस्ट है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको नॉलेज भी नहीं होगी। और केवल एक्टिंग करना ही कुछ कहाँ से आप एक्टिंग करेंगे, क्या एक्टिंग करेंगे? अगर आपने कोई हिस्टोरिक स्टोरी ली है, तो आपको कम से कम उस स्टोरी के बारे में पता तो होना चाहिए। अगर आपने रानी लक्ष्मीबाई का कोई नाटक उठाया और आपको पता ही नहीं है जी रानी लक्ष्मीबाई है कौन, क्या किया था उन्होंने, किस उम्र में क्या किया था, और कहाँ शादी हुई थी, बच्चा भी हुआ था कि नहीं, तो क्या था वो। अभी भी कुछ बच्चे पूछते हैं कि ये जो एक किसी महिला की फोटो होती है, घोड़े पर बैठे हुए, ये कपड़े में एक बच्चा क्यों बांधे हुए है? इसका मतलब है कि उन्होंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है। आप जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, आप जब तक उनके बारे में जानकारी हासिल नहीं करेंगे, तब तक आप डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज। अप टू द मार्क अगर आपको डिलीवर करना है, तो आपको पढ़ाई भी करनी है। और अगर आपको एक्टिंग फील्ड में आना है या राइटिंग फील्ड में आना है, डायरेक्शन फील्ड में आना है, तो आपको पढ़ाई जो है पूरी आपकी सपोर्ट करनी चाहिए। मैम, हमारा एक दर्शक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रमनदीप जी ने मैम ने पूछा है। तो मैम, उनका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ थिएटर इन इंडिया? लाइक वी सी इन फॉरेन कंट्रीज, students can opt for theater from their school level as major. So can we expect such changes in future? बिल्कुल है जी, क्योंकि अभी बीच में एक दौर आया था कि जब छोटे शहरों के थिएटर्स जो हैं वो ज्यादा कमाल नहीं कर पा रहे थे, तो वहां के आर्टिस्ट्स ने थोड़े बड़े सिटी में जाकर एक सपोर्ट लिया था, या उनके पास जाकर अपने आप को एडवांस करने की कोशिश की थी इन द फील्ड ऑफ थिएटर। और बड़े शहरों में प्रोफेशनल थिएटर्स आज भी चल रहे हैं। और इसका मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र जो है और वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल में थिएटर से लोग अपनी प्रोफेशनल जिंदगी चलाते हैं। उनके बिल्कुल पारिवारिक जो उनकी आजीविका होती है वो थिएटर से चल रही है। कुछ शहर हैं जहां पर कि थिएटर को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तो वहां पर थोड़ा पिछड़ा रह गया हमारे देश में। लेकिन अभी हमारे देश में बहुत सारी, आप दिल्ली में NSG है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहां पर जो है पूरा प्रोफेशनल आपको ड्रामा सिखाया जाता है। लेकिन उसमें एडमिशन के लिए पूरी एलिजिबिलिटी होती है कि आपको एग्जाम देना होता है, और जब आपका सिलेक्शन होता है तब आप वहां पर सीखते हैं। और जब सीखते हैं तब आपने देखा होगा कि जो हमारे फिल्मों के जो बहुत महान जो अभी भी इस वक्त भी हमारे फिल्मों में बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा दर्जे के जो कलाकार हैं, वो NSG से ही निकले हुए हैं जी। जैसे अनुपम खेर जी, नसीरुद्दीन शाह जी, ओमपुरी जी,
और अभी नई जनरेशन में मनोज बाजपेयी जी, रघुवीर यादव जी, आपके राकेश बेदी जी, तमाम लेडीज जो है, फीमेल आर्टिस्ट बहुत सारी हैं जो कि एनएसडी से आती हैं, या जो नहीं आते हैं वो उनकी अपनी चॉइस होती है कि वो शायद नहीं आना चाहते होंगे फिल्मों में, लेकिन वो लोग अपने थिएटर को कंटिन्यू रखते हैं, वो औरों को भी सिखाते हैं ताकि हमारे और नए कलाकार आए आगे, हमारे देश में कलाकार बनते रहें। ये प्रोसेस थमी तो नहीं है, लेकिन इतनी पॉपुलर ये सभी में इसलिए नहीं है क्योंकि जो है यहाँ पर मैं सुनाई दे रही हूँ आप सभी को? यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ जी, तो इतनी जो है यहाँ पर कलाकार थोड़े होते हैं क्योंकि बाकी की इतनी सारी फील्ड है, लोग कई उसमें जाते हैं, लेकिन फ्यूचर अच्छा है। अगर आप ये सोचें कि पूरी 100% लोग केवल थिएटर करें, वो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो उम्दा दर्जे का काम कर रहे हैं और आगे की जनरेशन को भी इंस्पायर कर रहे हैं और उनको टीचिंग्स भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, और नई जनरेशन भी है जो आज भी हमारे सभी जितने भी राज्य हैं हिंदुस्तान के, वहां पर कहीं ना कहीं उस स्टेट का ड्रामा स्कूल होता है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी, वहां पर भी सिखाया जाता है, वहां पर एडमिशन लिया जाता है और वहां पर सीखते हैं बच्चे, फिर वो आगे आगे और अपना काम करते हैं। हमारे देश के बहुत सारे हैं ऐसे कलाकार जो कि विदेशी मंचों पर उन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई है। जो भी इंडिया फेस्टिवल्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया का कोई ना कोई कहीं ना किसी प्रांत का, किसी ना किसी भाषा का नाटक होता जरूर है और जरूर होता है वहां पर। इसका फ्यूचर ब्राइट है, था भी और है भी और रहेगा भी। जी मैम, माय क्वेश्चन इज, मैम, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ थिएटर इन इंडिया? मैम व्हाट इज दैट? अभी मैंने बताया आपको, यही बात बताई। फ्यूचर अच्छा होगा, आपकी डेडिकेशन और आपकी डिवोशन चाहिए उसके लिए, है ना? बिल्कुल आइसक्रीम नहीं है कि बस निकाला और खाया और उसका स्वाद ले लिया, नहीं, उसकी पूरी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, सीखना होगा आपको बहुत ज्यादा पहले, और उसके बाद में आपको उसमें करना होगा, और हर स्टेप पर सीखते जाते हैं। मैं भी आज भी सीखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर हो गई ना, मेरे जो सीनियर्स हैं मुझसे बहुत अच्छा करते हैं, जब उनको देखती हूँ तो कहीं अपनी कमी जरूर मुझे महसूस होती है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। तो वही चीज आज की जो न्यू जनरेशन है या छोटे बच्चे हैं जिनको इस फील्ड में आना है, आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान के साथ साथ आप अपने इस थिएटर को भी परस्यू कर सकते हैं। यस जी मैम। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में कल्याण तो हो रहा है लड़कियों को लेकर, और आजकल की बेटियां भी काफी आगे बढ़ रही हैं, मगर कुछ क्षेत्र है जहां आज भी महावरी यानी मेंस्ट्रुएशन को लेकर काफी कंजर्वेटिव सोच है, और क्योंकि काफी पुराने समय से ये चलता आ रहा है और चीजें मुख्य धारा से हट गई हैं, तो उनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए आजकल की युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए और अपना किस तरह से सहयोग देना चाहिए? देखिए, इस फील्ड में वैसे तो सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, और जगह जगह एनजीओज जो बने हैं वो भी बहुत इसमें काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल ही अब 100% लोग बिल्कुल कंजर्वेटिव माइंड के नहीं रहे, जहां है, लेकिन ये है कि अ, उनके अंदर भी जो नई जनरेशन है और जो आजकल ये सोशल मीडिया वाला जो जमाना है, इसमें अब सब कुछ सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। आपको सैनिटरी हाइजीन के तरीके मालूम है, इनके कॉज भी मालूम है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कुदरती चीज है। तो इसमें अब ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल कोई भी इस चीज से अनजान रहा हो या इस चीज के बारे में बिल्कुल बहुत ही कंजर्वेटिव सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। एनजीओज बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं,
लड़कियों को, महिलाओं को, हालांकि पुरुषों को भी, और पुरुष तो खुद ही एनजीओ इन चीजों के रन करते हैं ताकि इसमें अवेयरनेस आती रहे, क्योंकि अगर वो अपने घर में भी देखते हैं कि उनके घर की महिलाओं को किसी भी चीज की परेशानी हो रही है इस पीरियड में, है, तब वो उनके मन में ये बात जागृत होती है कि सोसाइटी के लिए वो कुछ ऐसा अपना कंट्रीब्यूशन दें कि जहां पर अवेयरनेस आए कि भाई ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिससे आपको तकलीफ देने वाली है। रही बात तकलीफ की, तो जो 2-3-4 दिन अगर फिजिकल कोई परेशानी होती है तो इसमें घर के सभी मेंबर्स को जो है इस बात को बिल्कुल साथ सोचकर ये चलना होगा कि भाई ये कुदरती चीज है, और अगर 4 दिन महिला को अगर आराम करने दिया जाए और दूसरे अगर इस पे काम कर ले तो कोई बुराई नहीं है। और कहीं आने जाने में रोक टोक या कहीं उठने बैठने में रोक टोक, तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत दकियानुसी बात है। जी बिल्कुल। मैम, what according to you is the best part of your work? बेस्ट पार्ट ऑफ माय वर्क Yes, ma'am. रिगार्डिंग थिएटर एक्टिंग, Yes. Yeah. बेस्ट पार्ट डायलॉग डिलीवरी ऑफ कोर्स। It's fun, I guess, being engaged in with everyone, with the group, and with your team members. I guess it's fun and learning also. फन इन लर्निंग ऐसा होता है, देखिए जब हम डायलॉग डिलीवरी की जब बात कर रहे हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि अलग से बैठकर, इफ नॉट इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर, लेकिन अलग से बैठकर जब आर्टिस्ट बैठे होते हैं, एक ही डायलॉग को कई तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं हम। जी। उसी को हम कॉमेडी भी बना देते हैं, उसी को हम गुस्से में भी बना देते हैं, उसी को हम क्वेश्चन भी बना देते हैं, उसी को हम आंसर के रूप में बना देते हैं। तो वो चीज बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हमें वॉइस मॉड्यूलेशन का मौका मिलता है, उसमें हमको अपनी एक अलग जो हमारी डायलॉग डिलीवरी की जो एक वॉइस फ्लो जाती है वो एक अलग मिलता है हमें, तो उसमें एक बड़ा मजा आता है। लेकिन फिर ये समझ में आता है कि नहीं हमारा कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा, फिर हम उसी के ऊपर फॉर्म होते हैं कि नहीं हमको इसी तरह इसमें ये वाला डायलॉग मुझे इस तरह से बोलना है। एटलीस्ट मुझे तो एक्टिंग अच्छी लगती है करनी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और ध्यान में सब जगह देती भी हूँ। कहीं कहीं अगर मेरी सजेशन की जरूरत होती है तो मैं जरूर बताती हूँ, और नहीं तो मेरा काम है एक्टिंग करना, तो मैं अपने एक्टिंग को बहुत एंजॉय करती हूँ। डायलॉग डिलीवरी में मुझे बहुत मजा आता है। जी मैम, बिल्कुल। मैम, देखने में आया है कि इस पैंडेमिक की वजह से थिएटर्स और एक्टर्स को काफी नुकसान पहुंचा है, तो आपको भी किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, कोई ऐसी डिफिकल्टी आई हो, और आप क्या सोचती हैं, क्या उम्मीद करती हैं, कब तक स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी और कब से हम थिएटर आने जाने लगेंगे? लास्ट ईयर तो वाकई में सब कुछ पूरा शटर डाउन था हर जगह, और पब्लिक गैदरिंग तो वैसे भी जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से बिल्कुल ही बंद थी एक्चुअली। और तो अब देखिए अगर कोई नाटक हो रहा है तो उसमें एक बार में रिहर्सल में कम से कम अगर 4 लोगों का भी नाटक है, मतलब आपको अगर स्टेज पर अगर केवल 4 आर्टिस्ट दिख रहे हैं तो आप ये समझिए कि रिहर्सल के दौरान आपके पास कम से कम 10 लोगों की भीड़ होगी। भीड़ इन अ सेंस 10 लोगों की टीम होगी, एक डायरेक्टर होंगे, एक राइटर होंगे, एक म्यूजिशियन होंगे, एक लाइट एक्सपर्ट होंगे, है ना। अब ये सब बैठकर जब वो रिहर्सल करेंगे तो फिर ये खतरनाक था, तो इसी वजह से रिहर्सल वगैरह या जो भी है ये बिल्कुल ही बंद हो गई थी, और अभी भी बंद है बिल्कुल। बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पे कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन वही है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रिहर्सल्स चल रही हैं अभी। और रही बात नुकसान की, तो देखिए इसमें इस तरह के बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो जिनकी आजीविका सिर्फ थिएटर थी, थिएटर में ही जो थोड़ा बहुत काम कर लिया उसके जो उनको पैसे मिल गए उससे उनकी आजीविका थी, उनको वाकई में बहुत नुकसान हुआ है। और लेकिन कुछ हैं जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं
या कुछ और उनका प्रोफेशन है, तो वो उसको साथ में रखते हुए एक्टिंग कर रहे थे। मैं ये थिएटर वालों की बात बता रही हूँ, मैं सभी की जानकारी शायद मुझे भी नहीं है। जो मेरे आसपास के जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, मैं जितनी जानकारी मुझे उनके बारे में, मैं उस बेस पर बता रही हूँ आपको। तो उसमें यही है कि जिनकी बिल्कुल आजीविका थिएटर से थी, उनको बहुत नुकसान हुआ। फिर उन्होंने कुछ और छोटे छोटे कुछ स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू किए या किसी और तरीके से अपनी आमदनी का जरिया बनाया। और लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में है, वो तो रेगुलर उसमें है ही, तो उनको शायद इतना नहीं हुआ। जी मैम। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है कि ऐसे कौन से गुण हैं जो एक अभिनेता को सफल बनाते हैं? हमारे दर्शक, ये जो बच्चे देख रहे हैं, इनमें से कुछ होंगे एस्पायरिंग एक्टर्स, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? कुछ एडवाइस करेंगी, कुछ संदेश देंगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि आप जितना रीड करेंगे, आपके अंदर उतनी नॉलेज आएगी। और रीड का मतलब होता है आपके सिलेबस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके साथ साथ आप दूसरे जो बहुत अच्छी कहानियां होती हैं, अगर आप बहुत बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, आपके घर में अगर न्यूज़पेपर भी आते हैं, तो अगर आपने ये देखा होगा, संडे एडिशन में कई तरह के चुटकुले, लघु कथा, बड़ी कहानी, छोटी कहानी, कविताएं अगर ये भी आ रही हैं, तो आप इनको पढ़िए। आप अपनी पढ़ने, और पढ़ने का मतलब है केवल मन ही मन में नहीं पढ़ना है आपको, आपको वो जोर से पढ़ना है। अपने परिवार में एक किसी व्यक्ति को बिल्कुल अपने लिए खाली बिठाइए कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए, मैं इसको सही पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इसको सही उच्चारण कर रहा हूँ। और जब तक आपको अपने घर में बताने वाला इस तरह से नहीं होगा, तो आपकी वो मिस्टेक्स बढ़ती जाएंगी और आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि आप कहीं गलती कर रहे हैं। और अगर आपको घर में नहीं मिल रही है, तो आप कुछ इस तरह के लोग ढूंढिए, अपनी टीचर से पूछिए या अपने कुछ फ्रेंड सर्कल बना लीजिए, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स का। आप पहले वहां उस चीज का ज्ञान अर्जन करिए कि कैसे आपको पढ़ना है। और इसके साथ साथ अगर इसके अलावा भी आपके पास अगर टाइम है, तो आप जो हमारे लेखक हैं, चाहे इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश ड्रामा करना है तो शेक्सपियर है या और भी हैं, बर्नार्ड शॉ, ये आप इनकी भी कहानियां पढ़ सकते हैं। इनके आप नाटक प्ले जो बुक्स होती हैं, आप उनको पढ़िए, 1 बार 2 बार 4 बार, जितनी बार पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आती रहेगी वो चीज। या हिंदी के पढ़िए आप, तो आप जितना पढ़ेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा और आप उस बारे में उस तरह से सोचने लगेंगे। आपके सामने वो ड्रामा चलता रहेगा और आप कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से आप 30% सक्सेसफुल हो। जो गांव की सारी महिलाएं होती हैं, वो पूरे दकियानुसी तरीके से ही सोचती हैं या जैसे भी हैं, बिल्कुल बहुत ही, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की कमी है, उनके अंदर एक नॉलेज की कमी है, पढ़ाई लिखाई नहीं करती हैं वो, या है वहां पर इस तरह से कोई शिक्षा नहीं है, तो वो बिल्कुल बहुत ही दकियानुसी सोच रखती हैं। तो इसीलिए जो है उसमें मेरा रोल वही था कि एक दकियानुसी पड़ोसन का, कि मैं उसमें दकियानुसी तरीके से सोच रखती हूँ और उसी तरह से मैं अपने पड़ोसी जो नायक हैं उस फिल्म के, उनके साथ वैसा ही ट्रीट करती हूँ, है ना। लेकिन अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए, तो बहुत ही अभी पिछड़े ही इलाके हैं कि जहां पर कि इस तरह की बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता उन 2-4 दिनों में। लेकिन अभी बहुत काम ऐसा हो रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पंचायत लेवल पर या आंगनवाड़ी लेवल पर, वहां की जो आशा दीदी होती हैं, वो वहां पर जाकर उनको समझाती हैं कि ये इस तरह होता है, और उनको वो सैनिटरी नैपकिन इसीलिए दिए जाते हैं
कि भाई आप इनको यूज करें, प्रॉपर इसका सैनिटेशन करें और प्रॉपर इसको डिस्पोज करें, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको शारीरिक कोई तकलीफ है तो उसके लिए भी उनको दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको पुरानी सोच को हटाकर अपनी बच्चियों को आगे बढ़ते रहने देना। अगर उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो उनको घर पर रोकने का कोई औचित्य नहीं है। उनको बाकायदा स्कूल जाना चाहिए और आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू। I guess there's a network issue here. I think it is from ma'am's side. Karen? Okay, from ma'am's side. Yeah. Shalini ma'am, you are with us. Yes. I guess there was a network issue with you. हाँ जी, क्या हुआ था? Ma'am, there was a network issue from your side only. Oh. Yeah. So, ma'am, next question is from Ramandeep Kaur. She said, many of us still think of theatre as just acting on script. Please enlighten us about more horizons relating to theatre. मैंने आपको बीच में बताया था कि आर्टिस्ट केवल स्टेज पर एक्ट करने वाले आर्टिस्ट नहीं होते हैं। हमारे इर्द गिर्द हमको स्टेज पर उतारने के लिए बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। सबसे पहले तो राइटर होते हैं उस कहानी के। यदि आपने एक लिखी हुई कहानी भी ली है, सिलेक्ट की है, आपने कभी पढ़ी हो कोई कहानी और आपके मन में आई हो कि मैं इसको ड्रामेटाइज करूंगा, या है ना, तो आपके पास एक राइटर ने तो काम कर दिया। अब आपको उसके लिए स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है। स्क्रिप्ट राइटर का मतलब होता है आपके जितने पात्र हैं उनकी लिस्टिंग करना और उनके हिसाब से उनके डायलॉग्स अलग अलग लिखना। अगर आपने एक नॉवेल पढ़ी है तो नॉवेल को डायलॉग के रूप में नहीं लिखा जाता है, कभी भी नाटक के रूप में नहीं लिखा जाता है। उसकी उस नॉवेल को पढ़ते हुए उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करना, स्क्रिप्ट, और फिर उसके बाद में आपका एक डायरेक्टर काम करते हैं। पहले आर्टिस्ट का एक सिलेक्शन होता है ऑडिशन के तौर पर कि भाई एक किसी कैरेक्टर के लिए कम से कम 4, 5, 6, 10 आर्टिस्ट का ऑडिशन किया जाता है कि आप, और फिर जब डायरेक्टर को ये समझ में आता है कि कौन आर्टिस्ट इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, फिर उनसे वो एक्टिंग करवाई जाती है। और कभी कभी तो जो समझ भी आते हैं वो भी 2-4 अपने स्टेप्स के बाद में या 2-4 अपने डायलॉग डिलीवरी उनको फिर संभालते हैं डायरेक्टर। इसके बाद में अगर आपको उसमें म्यूजिक देना है तो म्यूजिशियन आपके काम करते हैं, वो भी आर्टिस्ट होते हैं। और जब स्टेज पर आते हैं तो आपने देखा होगा लाइट इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो जो लाइट इंजीनियर्स होते हैं उन, है ना, जो आपके दर्शक दीर्घा में आपके पीछे बैठकर लाइट को मैनेज करते हैं, किस आर्टिस्ट के ऊपर कितनी लाइट जानी है, अंधेरे का सीन है तो कितनी लाइट्स ऑफ करनी है, कहाँ से एक पतली सी रे निकालनी है आपको, कहाँ से आपको चांद की रोशनी देनी है, कहाँ से आपको सिर्फ टिमटिमाते हुए तारों की रोशनी देनी है, या कहाँ से आपके कोई चोर घुस रहा है घर में तो उसकी परछाई, कौन सी लाइट इस्तेमाल करने से आर्टिस्ट नहीं दिखेगा लेकिन आर्टिस्ट की परछाई दिखेगी। तो आप बताइए ये भी आर्टिस्ट हुए कि नहीं, लाइट इंजीनियर्स। हेलो, यस मैम, मैम am I audible? Yeah. हाँ, तो तब तो लाइट इंजीनियर्स भी आर्टिस्ट हुए कि नहीं, बोलिए। मैम एक रमनदीप मैम की तरफ से ख्वाहिश है, मैम शी इज आस्किंग फॉर अ लिटिल परफॉर्मेंस लाइक एनीथिंग maybe for 1 or 2 minutes. Ma'am, maybe it could be a dialogue from your Padman movie, like a famous dialogue or any dialogue you learned it. हाँ, मैं उसी के लिए फेमस हो गई हूँ क्योंकि एक तो लोगों को मजा आता है कि अच्छा अक्षय कुमार को डांटा। Yes, ma'am. I have seen that movie and I have seen that dialogue of yours and it was really impressive, and जिस तरह से you spread it out on Akshay Kumar sir.
तो मैम अ, उसके लिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो फिल्म। जो अक्षय कुमार ने जिन एक रियल लाइफ हीरो का प्ले किया है रोल, वो है मुरुगनाथन, तमिलनाडु के, जिन्होंने की सैनिटरी पैड्स बनाए हैं, एंड ही इज द फर्स्ट मैन, मेल पर्सन टू यूज दैट सैनिटरी नैपकिन। उन्होंने वो यूज करने की भी कोशिश की थी आर्टिफिशियली तरीके से। तो उसमें वही फिल्म में भी वही दिखाया गया था कि वो खुद यूज कर रहे हैं पैड को, लेकिन अब वो नेचुरल प्रोसेस तो एक मेल में वो वाली नहीं आएगी जो फीमेल में होती है। तो उन्होंने अपने पॉकेट में एक ब्लड बैग रखा था और हाथ में एक पंप रखा था, तो उसको देखने के लिए कि ये कितना फंक्शनल है ना। तो उन्होंने उसको, उस पंप को यूज किया था ताकि वो ब्लड फ्लो उस पैड पे आए। तो उसमें जो है अब उनको एम्बेरसमेंट फील हुई थी, तो वो उसको बचने के लिए क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग देख रहे थे, तो वो नदी में छलांग लगा देते हैं, और वो नदी एक तरह से इम्प्योर हो गई है ना, क्योंकि पूरे में ब्लड हो गया, वो इम्प्योर हो गई थी नदी। तो उसी के मद्देनजर उन पंचायत बैठी थी उस गांव में, और सभी लोग अपने अपने फैसले सुना रहे थे कि ये पागल हो गया है आदमी जो ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो उसमें का एक जो सीक्वेंस ये था कि सभी अपने अपने इल्जाम रख रहे थे उनके ऊपर। तो उनकी माँ बहुत परेशान थी, वो भी यही कह रही थी कि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, इसके ऊपर न जाने कौन सा भूत प्रेत चढ़ गया है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मुझे तो अब इतनी शर्म आने लगी है इसकी हरकतों से कि अब मैं अपनी बेटी के घर पे जाके रहूंगी, और उसी के घर का अब निवाला तोड़ना मेरी किस्मत बन गया है। ये उनकी माताजी ने कहा था। तब उनके जवाब में मैंने ये कहा था कि मेरी मानो तो इसको पीपल के पेड़ से उल्टा लटकाकर नीम की झाड़ू से तब तक पीटो जब तक इसके सर से भूत प्रेत का साया ना उतर जाए। थैंक यू मैम। और इसके बाद में जो है अक्षय कुमार जो है, जो उसमें लीड जो रोल प्ले कर रहे थे, उनको गांव से निकाल दिया जाता है। जी मैम, ऐसी ऋषिका का इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग फॉर द मूवी लाइक पैडमैन? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा नाम उसमें डायरेक्टर है मिस्टर आर बाल्की, वो थे, और उन्होंने मेरी इस डायलॉग डिलीवरी पर, क्योंकि मैं बोलूंगी तो नहीं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ जो वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स थे वो बहुत रीटेक्स ले रहे थे, और हम थिएटर वाले जो थे अपने भोपाल से, उनके जो डायलॉग्स थे वो एक बार में ही विदाउट एनी फंबल बहुत अच्छे हम डिलीवर कर रहे थे। तो उनके बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे हमको कि भाई थिएटर वालों के साथ परेशानी नहीं होती, ये लोग बिल्कुल उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं और बहुत अच्छे से इनकी डायलॉग डिलीवरी होती है। तो वो चीज था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैम वैसे रमनदीप ने एक और क्वेश्चन पूछा है आपसे, virtually also many events have been organized. Do you think virtual theater has a bright future considering greater chances to perform at international platforms too? देखिए, एक मजबूरी है, ऑनलाइन या वर्चुअली जो प्लेस हो रहे हैं, आप इसमें पूरी तरह से नहीं आपको उस चीज का आनंद मिलेगा या एक्सपीरियंस मिलेगा जब तक कि आप फिजिकली किसी थिएटर में जाएं और लाइव परफॉर्मेंस हर आर्टिस्ट की देखें। मैं तो ये कहूंगी कि ये आर्टिस्ट के साथ ही ये नाइंसाफी है, क्योंकि जब आर्टिस्ट लाइव आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे उनकी 2-3-4 महीनों की रिहर्सल की पूरी प्रैक्टिस होती है, पूरी मेहनत होती है, और उसको हम इतनी सी स्क्रीन पर या आप अपने एलईडी पर भी चलिए देखिए, अपनी टीवी पर भी, तो वो अब मजबूरी में कर रहे हैं लोग ताकि वो एक डिसकंटिन्यूटी ना हो जाए, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन
इसका बस ये थोड़ा कोविड चला जाए, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्दी से निकल जाए तो सभी अपनी अपनी पटरी पर आ जाएं और थिएटर भी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से अपना रंग जमा ले अपने रंगमंच के ऊपर। जी मैम। मैम एक और वैशाली दुबे जी की तरफ से एक क्वेश्चन है मैम की तरफ से। मैम, बीइंग अ वुमेन, क्या आपको किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा इन थिएटर? अगर हाँ तो प्लीज शेयर विद अस, और अगर ना तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वी ऑलवेज सी देयर इज अ जेंडर बायसनेस इन आवर सोसाइटी? नहीं नहीं, वो देखिए जो चीजें होती है ना वो कहीं और होती होंगी। जब हम डिटरमिन्ड होते हैं कि हमें अपना इतना टाइम डिवोट करना है और इतनी प्रैक्टिस के लिए जाना है, चैलेंजेस तो बस वही होते हैं कि एक अपना होम फ्रंट और फिर रिहर्सल फ्रंट, बस इसी चीज में चैलेंज होता है, बाकी और कुछ कोई नहीं है चैलेंज। जब आपका सिलेक्शन हो गया है कि मुझे ये वाला पात्र निभाना है तो बस निभाना है। अब मेरे साथ क्या कंपटीशन है किसी का, और रंगमंच में कंपटीशन कर भी नहीं सकता कोई, क्योंकि अगर एक स्टेज पर एक सीन में अगर 4 एक्टर्स हैं तो चारों की जिम्मेदारी बनती है कि हम मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो दूसरे को सपोर्ट करना है। क्योंकि अगर दूसरे ने कोई डायलॉग भूलते हैं या वो उनकी कुछ और एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो वो आपकी चली जाएगी। तो इसीलिए बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमें अपने डायलॉग्स, पूरी स्टोरी लाइन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि हम इसी के लिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं 4 महीने, है ना। तो अगर एक भी अगर थोड़ा भी डगमगाया आर्टिस्ट ऑन स्टेज, तो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको तुरंत संभाले, तीसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको तुरंत संभाले। तो इसीलिए ऐसा चैलेंजेस तो नहीं आते हैं, बल्कि और चैलेंजेस से डर लगता है कि भाई मैं अगर डगमगा जाऊं तो आप संभाल लेना, आप डगमगा जाओ तो मैं संभाल लूंगी, बस यही होता है और कुछ नहीं। और रिहर्सल करने में देखिए पूरी मेहनत तो हर किस में नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं आप सब बच्चे, पढ़ाई में भी मेहनत है। आप अभी ये जो अपने एक लाइफ एक्सपीरियंस के लिए आप अपने ये इस बहुत अच्छे एनजीओ के साथ आप हैं, तो ये भी एक अपने आप में मेहनत है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो रही है। तो बस यही चैलेंजेस होते हैं लाइफ के, और कोई नहीं। मैम, एक मोनाली की तरफ से आपके पास एक क्वेश्चन है। मैम, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। मैम, इसी में मैं एक और अपना क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। मैम, व्हाट वाज द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस? द बेस्ट एंड द टफेस्ट। टफेस्ट किस उसमें? Ma'am, in your पर्सनल field, in your life, in life related to theater, like your personal life with theater, in everything, your best experience and your toughest experience. बेस्ट एक्सपीरियंस तो देखिए जब फिल्म में या कोई डायलॉग हम करते हैं, और जब मैं फिल्म की बात बता रही हूँ, जब शूट करते हैं और जब हमारा अपना डायलॉग होता है और जब हमारी लिए ओके हो जाता है, उसके साथ साथ सारे क्रू मेंबर्स जब क्लैपिंग करते हैं, तो वो तो बेस्ट एक्सपीरियंस होता है ना। और एक बार एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ। मैं एक जगह मैं ज्यादा कुछ क्लियर नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी बताऊंगी कि मैं एक आउट स्टेशन गई थी अपने एक ड्रामा के लिए, और जो मेरा जो रोल था वो एक हमारे माइथोलॉजिकल जो है उसमें ही एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था मेरा। तो मेरा नाम कुछ और था, लेकिन जो मैंने आपसे कहा ना कि हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है अगर हम एक स्टेज पर खड़े हों तो तो उसमें से एक को एक्टर ने गलत नाम लेकर और मतलब उस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का नाम ही अलग ले दिया, और जो मुझे बोलना था मैं फिर वो अपना डायलॉग बोल ही नहीं पाई। मेरा मोनोलॉग था एक्चुअली, और मेरा मोनोलॉग कम से कम 1.5 पेज का था। वो जब मैंने पूरा A4 साइज का जो पेज होता है उसमें मेरे 1.5 पेज का मेरा मोनोलॉग था, विद पॉज, विद मूवमेंट्स,
with lot of expressions, वो पूरा का पूरा मेरा 0 हो गया था। वो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। जी और मैं फिर मैम, बैक स्टेज आकर बहुत रोई थी कि 4 महीने 2 महीने इतने महीने मैंने डायरेक्टर की भी डांट खाई, दूसरों के भी कभी हो जाता है, कभी छोटी मोटी कहासुनी भी हो जाती है आर्टिस्ट के साथ में रिहर्सल के दौरान। उन सबको पार करते हुए और जब मेरा आज फाइनल डे था, मेरे साथ वाली एक्टर ने कुछ और ही बोल दिया, तो मेरे उस डायलॉग की तो मतलब बोलना ही नहीं, मेरे को ऐसा मौका ही नहीं दिया कि मैं अपना डायलॉग डिलीवर करूं। पूरा जी का पूरा उन्होंने कवर कर दिया। जी मैम, मेरी सान्या सागर से यस हाँ, मैम, यस मैम, आप मैम सान्या सागर की तरफ से जी से आपका एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी यूज थिएटर विद किड्स फॉर लर्निंग? हाँ, आप जिस शहर में रहते हैं, आप देखिए कि आपके शहर में जरूर कोई ना कोई थिएटर एक्टिविटीज करने के लिए कुछ ग्रुप्स बने होंगे, जो थिएटर ग्रुप्स होते हैं। आप वहां पर संपर्क करिए, आपके बच्चों को रेगुलर वहां पर लेकर जाइए। मैंने आपको बताया ना, रीडिंग हैबिट इज द मस्ट, मतलब जो बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है रीडिंग। आपको कुछ भी रीड करना है, आप अपने बच्चों को रीड करवाइए, उस चीज के बारे में बताइए, उस चीज के बारे में उनसे क्वेश्चन करिए, उनसे बोलिए कि बच्चे क्वेश्चन करें जो पढ़ा है उसके बारे में। वहीं से शुरुआत होती है। और ये जो है ना, फिर डायरेक्टर आप संभालेंगे बच्चों को, क्योंकि आपको अपने शहर के किसी ना किसी छोटे जो ग्रुप्स होते हैं, थिएटर ग्रुप्स, उनसे आपको कांटेक्ट जरूर करना होगा वहां। और जरूर होंगे आपके यहाँ जो कि स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, या वहां के थिएटर से जुड़े होंगे और वो लोग अपने नाटक वहां पर प्रस्तुत करवाते होंगे। जी मैम, एक आखिरी सवाल है, what is challenging about bringing a script to your life? व्हाट इज What's challenging about bringing a script to life? मैंने कहा ना, उसकी स्किन में जाना होता है आपको। जी जो भी स्क्रिप्ट आपने ली है, पहले तो आपको पूरा आपने उस स्क्रिप्ट का मेन हीरो क्या है। हीरो से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेल आर्टिस्ट, नहीं। व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दैट स्क्रिप्ट, उसका सेंट्रल कैरेक्टर क्या है। जब तक आप उसके सेंट्रल कैरेक्टर के चारों इर्द गिर्द उसकी पूरी जानकारी हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक आपकी स्क्रिप्ट जो है लाइव हो ही नहीं सकती। आपने जी सोचा ये पढ़ लेते, हाँ ठीक है, इस रोल के लिए मैं इसको ले लूंगा, इस रोल के लिए इसको ले लूंगा, इस रोल के लिए इसको ले लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उस स्क्रिप्ट के बारे में, स्क्रिप्ट को पढ़ने से आपको उस प्ले के बारे में पता चलता है, उस नाटक के बारे में पता चलता है कि ये किस पीरियड का है, ये किन सर्कमस्टांसेस में लिखा गया होगा, ये जो स्टोरी चल रही है इसकी सराउंडिंग क्या है, इसका एटमॉस्फेयर क्या है, तो जी इसमें ये जो कैरेक्टर है इसका ऐसा नेचर क्यों है, वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता है हमेशा। मतलब जी आपको एक एक कैरेक्टर की पूरी एक पूरी हिस्ट्री जो है वो देखनी होती है, ऑब्जर्व करनी होती है। और जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं जी एज एन आर्टिस्ट। पहले जी आपको ऑब्जर्वेशन करनी है और उसके बाद में आपको एब्जॉर्ब करना है उस कैरेक्टर को, तब आपकी जो भी कैरेक्टर है या आपकी स्क्रिप्ट है वो एकदम लाइव आएगी। जी Thank you very much, Mrs. Shalini Gupta, ma'am. You took the time थैंक यू for सो us मच। and inspired this forum with your experiences, because it is said that life is just an experience, neither more nor less. So, with I, Rishvi Gupta and Nishi, take farewell by congratulating everyone for joining us today. Thank you.
Thank you very much, everyone. It was my honor, and I'm so much privileged that you all called me for your help. And I would be very happy if I could be a little help to all of you. Thank you so much. Namaste. Thank you, ma'am. Namaste, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, we are very much honored that you came to our platform. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye.